ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଜିକେର ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି, ଯେଉଁଟା ହେଲା ତୁମର ଓଡ଼ିଶା ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେ 2025-26। ଏଇ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ଟି ପିଲାମାନେ ରିସେଣ୍ଟ ତୁମର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତୁମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବ ହେଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି OSSCର CGL ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ କିମ୍ବା OSSCର RI ଓମିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ, ଏସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ହିଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ମାର୍କ ତୁମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବ ହେଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସିରିୟସଲି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବ, ପୁରା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖିବ ହେଲା। ହେଲେ ତୁମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝିପାରିବ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ୟାର ଗୋଟେ MCQ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ନେବି, ଯେଉଁଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଥିଓରି ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ କଭର୍ କରିବି ତାର MCQ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, ବୁଝିଗଲା। ତେଣୁ ଡିଟେଲରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଆସିଛ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରିନାହ, ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ତାର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ତୁମେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ ହେଲା। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ଯେତେ ସାରା ହୁଏ ୟାର ନୋଟ୍ସ ମୁଁ ତୁମକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ PDF ଫର୍ମରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରେ ହେଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିନାହ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଯାଇକି ଜଏନ୍ କରିଯାଅ ହେଲା। ତ ଆମେ ଡେରି କରିବାନି, କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ହେଲା। ତ ଆଜିର ଆମର ଟପିକ୍ ହେଲା କ'ଣ ନା, ଓଡ଼ିଶା ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେ 2025-26 ହେଲା। ତୁମେ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଓଡ଼ିଶା ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେ 2025-26ର ରିପୋର୍ଟକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ବହୁତ ବଡ଼ ରିପୋର୍ଟ। ଏତେ ବଡ଼ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଡିଟେଲରେ ମନେ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ହୁଏତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆମର ପାରେଇ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରହିନଥିବ, ବୁଝିଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଏମିତି ଫର୍ମରେ ୟାକୁ ପଢ଼ିବା କେମିତି ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଜିନିଷ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ବୁଝିଗଲା। ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଜିନିଷ, କ୍ୱାଲିଟି ଜିନିଷ, ବୁଝିଗଲା, ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଆପ୍ରୋଚରେ ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ହେଲେ ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବ, ବୁଝିଗଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ମୁଁ କିଛି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ନେଇଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବୁଝିଗଲା। ତେଣୁ ବଛା ବଛା ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ଟି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି ହେଲା। ତୁମେ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଦେଖ, ତାପରେ ମୋତେ କହିବ ହେଲା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଡେରି କରିବାନି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଚାଲ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଦେଖ ନା, ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ହେଲା। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇଟା ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିନ କ'ଣ ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେ, କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବନି ଆଗକୁ ହେଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଖିବା ଯେ ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେ କୁହାଯାଏ କାହାକୁ ହେଲା। ତା ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଆନୁଆଲ୍ ରିପୋର୍ଟ। ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟଟା ଏଇଟା ହେଲା। ରିପୋର୍ଟ କହିଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ହେଲା। ଯେମିତି ଆମର ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ସବୁ କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ଦିଆହୁଏ, କେତେ ମାର୍କ କ'ଣ କ'ଣ ରଖିଛ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେ ଗୋଟେ ଆନୁଆଲ୍ ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟଟା, ବର୍ଷକୁ ଏଟା ପବ୍ଲିଶ କରାହୁଏ ହେଲା। ଡେଟ୍ ରିଭ୍ୟୁ ଦ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଇକୋନୋମି ଅଫ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ବା ଗୋଟେ ଦେଶର ପୁରା ଇକୋନୋମିଟାକୁ, ଇକୋନୋମିର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କେମିତି କାମ କରୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବା ଆମ ଦେଶର ଇକୋନୋମି, ସେଟାକୁ ସେ ରିଭ୍ୟୁ କରେ ହେଲା। ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର୍, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ବା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆମର ଇୟର୍ ଥିଲା, ସେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର୍ ବା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର୍ରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଇକୋନୋମି କେମିତି ଥିଲା, ତାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କେମିତି ଥିଲା, ତାର ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆନୁଆଲ୍ ରିପୋର୍ଟ। ବୁଝିଗଲା? କ୍ଲିଅର? ଡେଫିନେସନ୍ ବୁଝିଗଲା। ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ବାଇ ଦ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେ, ଏଇ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟଟି କିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ନା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସ, ଆମର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିଥାଉ ହେଲା। ଅଣ୍ଡର ଦ ଗାଇଡାନ୍ସ ଅଫ୍, ଏବଂ ସେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କିଏ ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତି ନା ଚିଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜର। ଯିଏ ବି ଚିଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜର ଥିବେ ସିଏ ଏ ରିପୋର୍ଟଟାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ଆଣ୍ଡ ଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ 1 day ବିଫୋର ଦ ବଜେଟ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେବେ ବି ବଜେଟ୍ ଆସିବା ଥିବ, ବଜେଟ୍ ଆସିବାର ଠିକ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟଟାକୁ କ'ଣ କରିଦିଆ ହୁଏ ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାହୁଏ। କେଉଁଠି ନା ଦେଶର ହେଲେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ହେଲେ କେଉଁଠି ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ବୁଝିଗଲା। ତେଣୁ ବଜେଟ୍ ଆସି, ଏଇଥର ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଆସିଲା ତାର ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି, ବୁଝିଗଲା। ତାର ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା, ବୁଝିଗଲା। ଜାଣି ହେଲା କ'ଣ ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେ ମାନେ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ, କିଛି ମେନ୍ ଫିଚର ପିଲାମାନେ ଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଏଥିରେ କିଛି ମେନ୍ ଫିଚର ସବୁ ଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ମେନ୍ ଫିଚର ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଦେଖିବା ହେଲା। ଯେମିତି ତୁମେ ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେ ଯଦି ପଢ଼ିବ, ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ତୁମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବ? ରିଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍, ଇନଫ୍ଲେସନ୍। ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟ କେତେ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିଛି, କେତେ ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ଇନଫ୍ଲେସନ୍, ଇନଫ୍ଲେସନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କେତେ
कौन मु छाड़ यहाँ इनफ्लेसनटा मुझे तुमको डिटेल गोटे एग्जांपल देकी मुझे आग को बुझाऊँगी है यहाँ एवं खाली जानी था इनफ्लेसन तापर एम्प्लॉयमेंट जोटा तुम रोजगार है ये सब जिनस गुड़ाक सब मेंशन कराई था आउ कौन ना सेक्टर वाइज एनालिसिस माने कौन ना पूरा जमती एग्रीकल्चर गोटे सेक्टर इंडस्ट्री गोटे सेक्टर सर्विस गोटे सेक्टर पिला माने मन रखिबो गोटे इकोनॉमी रो ना तीनटा सेक्टर थाए प्राइमरी सेकेंडरी आउ टर्शियरी कहा जाए है प्राइमेरी रे तुम एग्रीकल्चरटा को प्राइमेरी सेक्टर कहा जाए इंडस्ट्री जिते सब कल कारखाना सब जिनस प्रस्तुत कराऊँगी सेटा तुम सेकेंडरी सेक्टर आउ जिते सब सेवा बा सर्विस आमको मिलूँ सेटा को टर्शियरी सेक्टर कहा जाए बुझीगला तेणु गोटे इकोनॉमी तीनटा सेक्टर थाए और ये तीनटा सेक्टर को आमर सेक्टर वाइज एनालिसिस कराई था कौन ना इकोनॉमिक सर्वे है थर्ड जिनस है गवर्नमेंट पॉलिसी एंड रिफॉर्म गवर्नमेंट कौन कौन सब पॉलिसी आनी कौन सब रिफॉर्म कराई ये सब जिनस मेंशन होता है आउ कौन 4 नंबर जिनस है फ्यूचर आउटलुक भविष्य में कौन करा है भविष्य में आमर इकोनॉमी रे कौन रिकमेंडेशन दरकार बुझीगला कौन आग को इकोनॉमी रे किसी ग्रोथ करने आमको आग को कौन करार अच्छी ये सब जिनस डिटेल तुम मेंशन होता है कौटी ना इकोनॉमिक सर्वे बुझीगला क्लियर चलो नेक्स्ट कौन अच्छी देखा नेक्स्ट है इंपोर्टान्स यार इंपोर्टान्स कौन रही ना हेल्प द गवर्नमेंट प्लान इकोनॉमिक पॉलिसी इकोनॉमिक सर्वे द्वारा कौन हुए ना आम जब गोटे पछ प्रीवियस ईयर आम जब रिपोर्टा को देखा ताले से रिपोर्ट आधार आम आग को किसी प्लान पॉलिसी सब करा आउ गोटे कौन ना प्रोवाइड डाटा एंड एनालिसिस फॉर रिसर्चर एंड स्टूडेंट एवं ये इकोनॉमिक सर्वे आमको किसी डाटा दे था प्रीवियस ईयर जो थी जो मैंने रिसर्च करते इकोनॉमी उपरे बा जो मैंने पाठ पढ़ुंट स्टूडेंट मैंने तांकु ये डाटा बहुत ही हेल्प करिथाय रिसर्च करने बा स्टडी करने बुझीगला क्लियर तो आम डिटेल जानीगले डेफिनेशन जानीगले क्या कौन कहुए जानीगले एबे आम एकदम पूरा रिपोर्टा को आम देखा जे ओडिशा इकोनॉमी सर्वे इथर जो रिपोर्ट पब्लिश होती कौन सब कहुई देख प्रथम पॉइंट पिला माने सबुठु इंपोर्टेंट पॉइंट जोटा कहुई जे ओडिशार जो जीडीपी है जोटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोली आम जोटा कहू है जीडीपी एटा को राज्य जेहेतु ओडिशाटा जेहेतु गोटे राज्य तेणु या जीडीपी न कहीकि जीएसडीपी कह जाए बुझीगला एस माने स्टेट है तो ओडिशार जो जीडीपी एथर आमर कौन इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश कराई ना लास्ट फाइनेंशियल ईयर रे ना 9.88 लाख करोड़ टंकार आमर कौन ओडिशार जीडीपी थिला बोली कह जाए जोटा कि लास्ट 20 वर्ष को आम जब देखा ताले सी 10 गुणा कौन होती ना ग्रोथ हो वृद्धि होती बोली कह जाए तो यहाँ गोटे बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न रहिबो तमर फास्ट पॉइंट यहाँ मन रखिबो जे इकोनॉमिक सर्वे रे लास्ट फाइनेंशियल ईयर रे आमर ओडिशार जीडीपी केते थिला ना मन रखिबो 9.88 लाख करोड़ टंकार कौन थिला ना ओडिशार जीडीपी बुझीगला नेक्स्ट एबे आमे सेक्टोरल शेयर देखिबा सेक्टर वाइज मु जेमती कहूतिले ना एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी टर्शियरी बास सिगुड़ा सेक्टर वाइज आमर जीडीपी केते अछि कोन हला इंडस्ट्री जदि आमे देखिबा इंडस्ट्री सेक्टर रे आमर 41.3% रहुछि सर्विस सेक्टर रे जोटा सेवा आमे कहूछु सेतिरे 39.1% रहुछि हला सेमिति आउ कौन अच्छी एग्रीकल्चर तुम 19.6 एग्रीकल्चर तुम केते अच्छी ना 19.6% अच्छी बुझीगला अच्छा ताले मते कह ये जो एग्रीकल्चर 19.6 इंडस्ट्री रे 41.3 सर्विस रे 39.1% ताले मते कह जे ओडिशा रे को सेक्टर रे सबुठु सर्वाधिक जीडीपी आमर आसुची ना मन रखिबो इंडस्ट्री सेक्टर हला जोटा कि 41.3 ये डायरेक्ट प्रश्न तुमको पचारिबो हला जे आमर लास्ट फाइनेंशियल ईयर रे इंडस्ट्री सेक्टर रो आमर केते परसेंट जीडीपी रो शेयर अच्छी मन रखिबो 41.3% जोटा सबुठु आमे हाईएस्ट बोली कहि परिबा तीनटा सेक्टर मध्यरु बुझियला क्लियर चलो नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट अच्छी सीएजीआर माने कौन ना कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जेमिति आमे कंपाउंड इंटरेस्ट हिसाब करू ना जोटा चक्रवृद्धि सुध ठीक सेमती आमर ग्रोथ रेट टाकू भी कंपाउंड हिसाब रे जदि चक्रवृद्धि हिसाब रे जदि आमे देखिबा ताले आमर ओडिशार जो ग्रोथ रेट 12.4% रो अछि बोली कहा जाइछि बुझीगला तो सिंपल सीएजीआर केते परसेंट मन रखिबो 12.4% एगुडा डायरेक्ट पिला माने एमसीक्यू तुमको पचारिबो बुझीगला पूरा एकदम पूरा सिलेक्टेड पॉइंट गुडा को मु तुमको देइछि हला नेक्स्ट ओवरऑल ग्रोथ जदि देखिबा हमर ओडिसा रो ओवरऑल ग्रोथ ताले केते परसेंट रहिछि ना 7.9% रो ओवरऑल ग्रोथ हेछि कहा जाइछि ठीक सेमती इंडिया रो जदि देखिबा मु एठी इंडिया रो भी टिके मेंशन कर देइछि हला तो इंडिया रो जदि ओवरऑल ग्रोथ कथा देखिबा ताले ये हला केते 7.4% रो अछि बोली कहा जाइछि
बुझीगला। नेक्स्ट एबे देखिबा सेक्टर वाइज ग्रोथ है। एबे पुणी आम सेक्टर वाइज ग्रोथ आमर ग्रोथ रेट केते हिची माने आगरु एटा देख सेक्टर वाइज एई थरो तुम जीडीपी रे सेक्टर वाइज आमर केते कहार केते परसेंट भूमिका अछि आमे देखिले। एबे देखबा सेक्टर वाइज ग्रोथ केते हिची कंफ्यूज होबनी दुईटा जिंस रे हला। सेक्टर वाइज ग्रोथ केते आगरु केते थिला केते परसेंट ग्रोथ हिची हला। जेमती आमे देखिबा सर्विस सेक्टर रे आमर 9.3% रो ग्रोथ हिची बोली कहा जाईची। इंडस्ट्री सेक्टर रे 6.4% रो ग्रोथ हिची। एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र रे 5.3% रो ग्रोथ हिची बोली कहा जाईची। ताले मते को सर्वाधिक ग्रोथ ताले को सेक्टर रे हिची तुमे कहबो सर सर्विस सेक्टर रे सर्वाधिक ग्रोथ आम ओडिसा रे देखिबा पई मिलिची केबे ना लास्ट फाइनेंशियल ईयर रे। बुझीगला क्लियर। ये मध्य गोटे इंपोर्टाट पॉइंट मन रखिबो हैला। सबुठु सर्वाधिक को सेक्टर रे ग्रोथ हिची ना मन रखिबो सर्विस सेक्टर रे सबुठु ग्रोथ हिची। किंतु पचारिबो जदी जीडीपी रे सर्वाधिक शेयर कहार अछि को सेक्टर तो सेते बेले मन रखिबो इंडस्ट्री सेक्टर अछि। बुझीगला क्लियर। चलो नेक्स्ट देखिबा सेक्टर वाइज ग्रोथ रे एबे इंडिया रो टिके देखिबा इंडिया रो सेक्टर वाइज कोउथिरे केते ग्रोथ हिची। इंडिया रो जदी आमे देखिबा सर्विस सेक्टर रे 9.1% ग्रोथ देखिबा पई मिलिची। इंडस्ट्री सेक्टर रे हमर 6.2%, एग्रीकल्चर रे 3.1% ग्रोथ देखिबा पई मिलिची। तनो इंडिया रे आम देश कथा जदी आमे देखिबा ताले देश रे को सेक्टर रे ग्रोथ रेट बेसी अछि ना आम देश रे भी सर्विस सेक्टर रे ही सबुठु बेसी ग्रोथ रेट अछि। बुझियाला क्लियर। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखिबा पार कैपिटा इनकम। पार कैपिटा इनकम रो अर्थ होउची कोन ना मुंडो पिछा आय हैला। हमर टोटल जीडीपी जेतिकी भी ताकू जदी आमे लोक संख्या बा पॉपुलेशन द्वारा आमे हरण कर देबा ताहले मुंडो पिछा आयटा जणा पड़ी जाय हैला। तबे हमर ओडिसा रो एथरो मुंडो पिछा आय केते हिसाब करा हिची लास्ट फाइनेंशियल ईयर रे ना 1,86,761 टंका कोन ना मुंडो पिछा आय बा पार कैपिटा इनकम। वेरी इंपोर्टेंट जो गुडा इंपोर्टेंट पिला माने मु डायरेक्ट कहि दोउची हैला। तो ओडिसा रा लास्ट फाइनेंशियल ईयर रे जो मुंडो पिछा आइबा पार कैपिटा इनकम केते थिला ना 1,86,761 टंका। ठीक सेमती आमे जदी इंडिया रो आम देश रो देखिबा मुंडो पिछा आय ताले केते ना 2,19,575 टंका हिची। बुझिगला। एटा लास्ट फाइनेंशियल ईयर रो कथा। बुझिगला। चल आमे जदी ग्रोथ देखिबा ताले ग्रोथ सार केते हिची ना पार कैपिटा इनकम रे ग्रोथ जो हिची लास्ट 10 वर्ष को आमे जदी लक्ष्य करिबा ताले पार कैपिटल इनकम रे हमर ग्रोथ हिची केते ना 11.2% रो ग्रोथ हिची। ये मध्ये गोटे बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट हैला। क्लियर। बुझिगला। केते कोन पार कैपिटा इनकम क्लियर हे गलो। चलो नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट हला लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हैला। देखो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट याकू शॉर्ट रे एलएफपीआर बोली मध्ये कुहा जाय हैला। पिला माने लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रो अर्थ कोन ना यार अर्थ होउची जो लोक माने भी किछि ना किछि गोटे काम धंदा करूछंती से बिजनेस करंतु चाकरी करंतु जहाँ भी करंतु जो माने किछि काम करूछंती किछि टंका इनकम करूछंती बुझिगला से मान को आमे कोन कहबा लेबर फोर्स बोली कहि था हैला। तेणु लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन माने केते लोक इनकम रे योगदान देइछंती बुझिगला सेटा को लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आमे कहि थाउ हैला। ताले लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट दि प्रकार थाए गोटे मेल रो आ फीमेल रो हैला। मेल रो आमे जे देखिबा 64.5% रहितला करते ना हमर मेल रो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। सेमति फीमेल जे देखिबा 48.7% रो फीमेल हमर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ओडिसा रे थिला लास्ट फाइनेंशियल ईयर। बुझियला क्लियर। चलो एगुडा डाटा गुडा केवल परसेंटेज रे मने रखिबो तुमको नंबर रे केबे पचारिबोनी सिंपल परसेंटेज रे पचारिबो बुझियला। तेणु निश्चित मने रखिबो याको। तापरे नेक्स्ट देखिबा पार मंथली पार कैपिटा मंथली माने मासकू हैला पार कैपिटा कंजम्पशन आउ एक्सपेंडिचर आमे जदे देखिबा हैला। एटी आमे एक्सपेंडिचर टा एटा काटी दबा आमे कंजम्पशन को केवल देखिबा हैला। कंजम्पशन माने जणे लोक मासकू केते कोन कंजम्पशन करूछ माने केते खाउची बा उपभोग करूची केते सेटा को आमे कंजम्पशन बोली कहि थाउ हैला। तो रूरल गाँ रे जदि आमे देखिबा ना जणे लोक मासकू 3000 एटा रुपीज चिन्हटा काटी दबो 3357 किलो कैलोरी कंजम्पशन करूची बोली कहा जाईची। अर्बन शहर एरिया रे जदि आमे देखिबा जणे लोक मासकू 5825 किलो कैलोरी कंजम्पशन करूची बा खाउची बोली आमे कहि परबा एटा हमर रिपोर्ट रे कहा जाईची हैला। नेक्स्ट आ गोटे एटी इंपोर्टेंट पॉइंट एटा स्टार देई कि मने रखिबो शेयर ऑफ नॉन फूड एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज हैला व्हाइल शेयर ऑफ फूड एक्सपेंडिचर हैज डिक्लाइन। ता माने जो फूड खाद्य बाबद को जो हमर एक्सपेंडिचर खर्चटा सेटा कमी जाईछि नॉन फूड जिंसर आमे खर्चटा कोन हो जाईछि ना बढ़ी जाईछि बोले देखिबा पई मिलिछि।
बुझीगला। नेक्स्ट नेक्स्ट देखा एवं आम इनफ्लेशन रेट है। इनफ्लेशन रेट केते देख इनफ्लेशन रेट 2023-24 मसीहार आम जदि डाटा को देखा ताले 6.5% इनफ्लेशन रही इनफ्लेशन रेट है। कैपिटल आउटले जदि कैपिटल आउटले अर्थ हूँ कौन कैपिटल आउटले माने केते पुंजी कौन विभिन्न लंग टर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर काम खर्च कराई। लंग टर्म माने कौन ना सब माने एमिति जगार पैसा आम कि लगेगा जो बहुत दिन पर्यंत आमको इनकम मिलूब बुझीगला से गुड़ा को लंग टर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर कहुए है। तो से बाबद में आमर राज्यर जो कैपिटल आउटले रही 2025-24 हिसाब से 6.6% बोली कहुई इकोनॉमिक सर्वे बुझीगला। तापर सबुठू इंपोर्टेंट पॉइंट पिला माने एटा को स्टार देकी मन रखिबे है। कौन ना फिस्काल डेफिसिट। फिस्काल डेफिसिट जदि आम देखा 3.5% फिस्काल डेफिसिट माने कौन पे देख आमर इनकम जदि 10 टंका अच्छे धरा जाऊ मु गोटे उदाहरण दूसरी इनकम जदि 10 टंका तुम पाखे अच्छी तुम जदि खर्च करुच 15 टंका ताहले केमिति खर्च कर सार मो पाखे तो 10 टंका अच्छी मु 15 टंका केमिति खर्च करी ना ये जो 5 टंका एक्सट्रा खर्च होची से पैसाटा आमको कौन करवाई पड़े कौटू ना कौटू गोटे धार आने पड़ो बुझीगला। तो ये जो इनकम कम थी कि खर्च बेसी जो हो जाटा को कहुए फिस्काल डेफिसिट बोली कहुए। आमर ओडिशार फिस्काल डेफिसिट लास्ट फाइनेंशियल ईयर 3.5% अच्छी थिला बोली आमर कहुई इकोनॉमिक सर्वे है। रेवेन्यू सरप्लस जदि देखिए रेवेन्यू अर्थ आम राज्य जो रेवेन्यू बा जो कर आदाय करुच्ची सेटा रेवेन्यू सरप्लस माने केते अधिका आसी है। रेवेन्यू सरप्लस एथर 3.2% आसीथिला बोली कहुई बुझीगला। एटा सबू पिला माने गोटे गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट सबू गुड़ाक परसेंटेज फॉर्म रे गोटी गोटी करके नोट करके रखिबो है। चल नेक्स्ट देखा शेयर ऑफ सब सेक्टर इन एग्रीकल्चर। आम तो एग्रीकल्चर देखी एबे एग्रीकल्चर पुणी किसी सब सेक्टर देखा एग्रीकल्चर कौटू केते कौन आसूची क्रॉप्स रु आम जो देखा 61.5% योगदान रही क्रॉप्स रु एतिकी टंका आमर एतिकी परसेंट कौन राज्य को आमर आय आसूची। ग्रोथ जदि देखा 5.1% ग्रोथ होती। लाइव स्टॉक जब देखा 13.7% ग्रोथ होती 4.7%। फॉरेस्ट्री रु आमर केते आसूची जीडीपी को शेयर ना आमर 13.4% जोटा ग्रोथ होती 5.1%। फिशिंग रु 11.3% ग्रोथ होती 6.3% बुझीगला। तो ये डाटा गुड़ाक टिके मन रखिबो जे एग्रीकल्चर पुणी कौटू केते परसेंट आमर कौन आय होउची है। नेक्स्ट देखा प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन सेटा पुणी कौन देसी ना लाख मेट्रिक टन रे आमको देसी है। जमती आम मिल्क जदि आम देखा आम राज्य लास्ट फाइनेंशियल ईयर मिल्क रो प्रोडक्शन 27.1 लाख मेट्रिक टन रही बोली कहुई। एग प्रोडक्शन जो देखा 406.1 लाख मेट्रिक टन रो प्रोडक्शन होता बोली कहुई। फिश जदि देखा फिश 11.9 लाख मेट्रिक टन रो फिश प्रोडक्शन होती कहुई है। सेमिति पुणी फ्रेश वाटर सेटा सामुद्रिक माछ थिला एटा फ्रेश वाटर फिश जदि आम देखा एक्सपोर्ट 72.6% बाहर राज्य को आम आम एतकी लाख मेट्रिक टन आम बाहर राज्य को एक्सपोर्ट करूँ। इंपोर्ट जब देखा आम बाहर राज्य आमदानी केते करूँ ना 29.7 लाख मेट्रिक टन आम आमदानी करूँ बुझीगला। मेराइन एक्सपोर्ट जो देखा माने सामुद्रिक जिनिसर आम एक्सपोर्ट रप्तानी केते करूँ ना 4,708 कोटी टंकार आम रप्तानी बा एक्सपोर्ट करूँ बोली इकोनॉमिक सर्वे कहुई है। नेक्स्ट देखा इंडस्ट्री सेक्टर रे टार्गेट कौन रखा जाइथिला ना 1 ऑफ द टॉप 5 मैन्युफैक्चरिंग स्टेट आमर ओडिशा को टॉप 5 मैन्युफैक्चरिंग स्टेट भितर सामिल करने लक्ष्य रखा जाइथिला एवं एटलिस्ट 2 मेजर ग्रीन इंडस्ट्री हब अति कम 2टी मुख्य ग्रीन इंडस्ट्री हब 2047 मसीहा सुधा कर लक्ष्य रखा जाइथिला एवं 2047 मसीहा सुधा 7 ରୁ 8% शेयर आमर टोटाल इंडियास एक्सपोर्ट इंडिया रो टोटाल जेतिकी भी एक्सपोर्ट होउची इंडिया रो आम देशरू से आमर ओडिशा रो जदि शेयर देखा 7 to 8% करने लक्ष्य रखाई कहते ना 2047 मसीहा सुधा 2036 मसीहा सुधा ताकू 5% रे पहुँचेबार टार्गेट रखा जाइथिला है। नेक्स्ट देखा मिनेराल प्रोडक्शन है। मिनेराल प्रोडक्शन केते कौन थिला ना आमर लास्ट फाइनेंशियल ईयर आम जो देखा क्रोमाइट रो प्रोडक्शन 100% थिला। बॉक्साइट 72.7%, आयरन 55%, कोल 26%, मांगानीज 18%। यही सब डाटा गुड़ाक टिके मन रखिबो
କେଉଁ ମିନେରାଲ୍ର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କେତେ ପରସେଣ୍ଟର ଥିଲା ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ର୍ୟାଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ କେଉଁ ଜିନିଷରେ ନା କ୍ରୋମାଇଟ୍, ବକ୍ସାଇଟ୍, ଆଇରନ୍ ଆଉ କୋଲ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଟି ଜିନିଷରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ର୍ୟାଙ୍କ କ'ଣ ନା ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ମନେ ରଖିବ। ଓଡ଼ିଶାର ର୍ୟାଙ୍କ କେଉଁ ମିନେରାଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନରେ ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ର୍ୟାଙ୍କ 4 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। କେଉଁଥିରେ ନା ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନରେ ଓଡ଼ିଶାର ର୍ୟାଙ୍କ ଆମର 4 ନମ୍ବରରେ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବୁଝିଗଲା। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପାର୍ କ୍ୟାପିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କନଜମ୍ପସନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ 2191, ଏଇଟା ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଡାଟାଟାକୁ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ପାର୍ କ୍ୟାପିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କନଜମ୍ପସନ୍ କେତେ ନା 2191। ରେଲୱେ ଲେନ୍ଥ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟରରେ ଆମ ରେଲୱେ ଲେନ୍ଥ ଯଦି ଦେଖିବା 3243 କିଲୋମିଟର ଟୋଟାଲ ଲେନ୍ଥର ରେଲୱେ ୱେ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ୍ ରେଟ୍, ଏଇଟା ବି ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। 2000 ଅର୍ବାନାଇଜେସନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସହରୀକରଣ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ। 2011ରେ 19% ଥିଲା, 2036 ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ 40% କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 2047 ସୁଦ୍ଧା 60% କ'ଣ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ୍ ବା ସହରୀକରଣ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ବୁଝିଗଲା। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଏଇ ଯେଉଁ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ଅପରେସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଅପରେସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5ଟି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଚାଲୁଛି। କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଯଦି ଦେଖିବ 575 କିଲୋମିଟର ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଏବଂ ଆମର ଏଇଟା ଟିକେ ଏଇଠି ଭୁଲରେ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ପୁରା ପଏଣ୍ଟରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା 574.7 କିଲୋମିଟର ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ପୋର୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବା ବନ୍ଦର ସଂଖ୍ୟା ଟୋଟାଲ 14ଟି ବନ୍ଦର ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ହେଲା। ନମ୍ବର ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୱାଟର ୱେ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇକି ଟୋଟାଲ 6ଟି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୱାଟର ୱେ ଯାଇଛି ହେଲା। ଇନଫାଣ୍ଟ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍ ଯଦି ଦେଖିବା 30%ର ଅଛି। ଅଣ୍ଡର 5 ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍ 35%ର ଅଛି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ସୁଭଦ୍ରା ବେନିଫିଟ୍ ବାବଦ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି 1 କୋଟି ଓମେନ୍ ବା 1 କରୋଡ଼ ଓମେନ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇସାରିଲେଣି। ଏତିକି ଜିନିଷ ତୁମର କ'ଣ ନା ତୁମର ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତିକି ଜିନିଷ ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କହିଲି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର ଓଡ଼ିଶା ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଗୋଟେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍। ଏଟାକୁ ନୋଟ୍ କରିବ। ୟାର PDF ମୁଁ ତୁମକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିନାହ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ତୁମେ ଜଏନ୍ କରିଯାଅ। ମୁଁ ୟାର ନୋଟ୍ସଟା ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରିଦେବି ହେଲା। ୟା ପରେ ମୁଁ ୟାର ଗୋଟେ MCQ କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ MCQ ଆମେ କଭର କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଇଜିଲି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରହିଯିବ ହେଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।